Yes, students, today in this audio lecture, we are going to discuss import quotas and import tariff. In the previous question, we found that there is equivalence of tariffs and quotas. However, Jagdish Bhagwati did not accept the strict equivalence between quotas and tariff. Although through the diagram we found that in terms of change in price or change in production, consumption, balance of payment, position, redistribution and terms of trade, there seems to be equivalence or between tariff and quotas. However, many arguments have been put forwarded that there are specific differences between the import quotas and import tariffs. Just first, let's have a look at the similarities. Number one is that both the policies, either import quota or imposition of import tariff, they have the same objective. It means providing protection to the domestic industries and reduction in the volume of imports. दोनों का ही same objective है, अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना और आयातों की मात्रा पर नियंत्रित अंकुश रखना. Second is that both lead to fall in the volume quantum of imports. तो import tariff also जो है वो focus करता है कि quantity of import कम हो जाए और कोटा का भी यही purpose है. And third जो है that is जो in terms of production, price, consumption, redistribution, government revenue, both have similar or equivalent effects. However, now let's have a look at the controversy or the arguments which are put forward for proving that both are different. Number one is in terms of degree of flexibility. पहला है फ्लैक्सिबिलिटी का केस. द इम्पोर्ट कोटाज जो हैं वो इनफ्लैक्सिबल हैं बिकॉज already when the quota is fixed and it is allotted, so the quantity of import जो है वो fix हो गया. However, जो आपके tariff conditions हैं, even under tariff, when tariff is imposed, the quantum of imports or the inflow of imports can be less or it can be high. If people still are ready to accept the imported product at high price क्यों होगा? क्योंकि टैरिफ लग गया. इट मीन्स कि इंपोर्ट्स पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा. तो इसलिए कोटा जो है वो एक रिजिड सिस्टम आपको देता है. समटाइम्स इट इज असेंशियल टू इम्पोर्ट कोटा, टू फिक्स इम्पोर्ट कोटास. और जो है आपका टैरिफ जो है वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता. सेकेंड इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. कोटा सिस्टम ऐसा कहा जाता है दैट इट फेवर द एस्टेब्लिश्ड इम्पोर्टर्स. It means कि because when quota is allocated or distributed, so political decisions may lead to the allocation of quota to the countries which to the import houses or to the countries or to the multinational corporations which are less efficient. But tariff जो है वो एक by nature, tariff का जो system है by nature ही जो है वो non discriminatory है. So tariff तो क्योंकि value terms में लगाया जाएगा, so that can be better. Third is no interference with the market mechanism. When government interferes the market system by way of imposition of quota, import quota, so it is a hindrance in the functioning of the market economy. क्योंकि कोटा फिक्सेशन बाय द गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल एग्जीक्यूट कर दिया. तो जो मार्केट इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे काम कर रही है, दैट विल नॉट फंक्शन फ्रीली. ऑल्दो टैरिफ भी एक इंटरफेरेंस है, बट दैट इज सेड टू बी एन इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस बिकॉज व्हेन टैरिफ्स आर इम्पोज द डोमेस्टिक प्राइसेस विल चेंज. इट मीन्स मार्केट सिस्टम काम करेगा कि टैरिफ लगा तो प्राइस बढ़ेगा. अब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी. क्या इफेक्ट होगा वो मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिटरमाइन करेंगे. लेकिन जो कोटा है वो मार्केट मैकेनिज्म को रिप्लेस करने की कोशिश करता है क्योंकि उससे डायरेक्ट इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का. फोर्थ इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज. Under the quota system, there is a chance of
ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज. वाई? बिकॉज जैसे हमने पहले किया था दैट इम्पोर्ट कोटास के केस में जो एलोकेशन होगा इम्पोर्ट कोटा का, इम्पोर्ट हाउसेस जो हैं आपके स्टार ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस हैं या बिग बिजनेस हाउसेस हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सो दे मे बी एलोकेटेड द परमिशन टू इम्पोर्ट दैट पर्टिकुलर कोटा. तो अपनी ही कंट्री में और इवन इंटरनेशनल मार्केट में मोनोपोलीज जो है, जैसे इंटरनेशनल कार्टल्स हमने कहा था बन जाएंगे, तो वो आपका मोनोपोलीज को और मीन्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं दैट कैन बी एनकरेज्ड. बट इम्पोर्ट टैरिफ जो है दैट इज अ fair imposition of tariff on the import of any commodity, so that helps to the domestic producers and it जो है it doesn't prevent the competition. उसमें competition को वो harm नहीं कर रहा, कुछ ऐसा उसके अंडर नहीं हो रहा, because importers जो हैं they do not have any sound justification in changing price higher than the price inclusive of import tariff. Next is easier balance of payment adjustment. If a country having a balance of payment surplus then fixes the import quota, it will become impossible for deficit country to make the balance of payment adjustment. It means कि quota जो है basically उस country के against work करता है जिसका balance of payment deficit है. Means अगर A country ने balance import quota fix किया है, तो वो quota किसके against हो गया? B country जो उसे product को export कर रहा है A को, ठीक है. तो बी कंट्री जो एक्सपोर्टर है और मान लीजिए उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, अब जब उसे ए कंट्री अलाउ ही नहीं करेगा एक्सपोर्ट करने को, तो हाउ दैट ए बी कंट्री विल मीट इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कैसे होगा, ठीक है. लेकिन जो टैरिफ है, जबकि इस केस में भी ऐसा ही होगा, बट स्टिल देयर इज अ चांस दैट इवन एट हाई प्राइस because of imposition of tariff there is a chance of more exports or from B and or say more imports in A. तो इसलिए एक अगर हम globally देखें तो जो है quota system जो है that doesn't favor much. Next is inflationary effect. If the government जो है it imposes tariff, definitely the price of commodity will increase, actual price plus the amount of tariff, but this may not happen for the consumers. Means price तो बढ़ेगा, लेकिन जो increased price है यानी कि जो tariff का amount है that can be shifted to the consumers by addition in the price. तो सारा का सारा वो tariff का amount price increase के form में it will be shifted to the consumers. मीन्स इंसिडेंस जो है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स जैसे आप पढ़ते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैरिफ विल बी शिफ्टेड टू कंज्यूमर्स, बट जनरली इट डज नॉट हैपन. जनरली क्या होता है कि जो टैरिफ लगाया गया उसका कुछ पार्ट इंपोर्टर्स बेयर कर लेते हैं, कुछ एक्सपोर्टर्स बेयर कर लेते हैं, जिस केस में जो प्राइस है वो इंक्रीज नहीं होता है. तो इट मीन्स कि लेकिन इम्पोर्ट कोटा जब होंगे तो डेफिनेटली सप्लाई ही कर्टेल हो जाएगी. मीन्स यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन टैरिफ इम्पोजिशन मीन्स सप्लाई इज नॉट कर्टेल्ड. सिर्फ प्राइस बढ़ा दिया गया टैरिफ लगा के, तो अब वो डिपेंड करता है उस इकोनॉमी में कि वो हाई प्राइस पर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट के रिवेन्यूज तो बढ़ेंगे ही, लेकिन सप्लाई को पर ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा. लेकिन इंपोर्ट कोटास में it is a direct no entry, it is a ban basically in the inflow of commodities from foreign markets. So this may be highly inflationary because जो quota system है that will reduce the supply in the domestic market and it may lead to increase in the प्राइस. ठीक है. उसके बाद है रिवेन्यू इफेक्ट. टैरिफ्स आर बेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टेट एज दे यील्ड सम रिवेन्यूज टू द गवर्नमेंट, लेकिन कोटास जो हैं दे मे नॉट यील्ड सम रिवेन्यू, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस कह लीजिए जो है वो मिलेगा. लेकिन जो टैरिफ है वो तो एक क्लियर कट, तो कई बार गवर्नमेंट टैरिफ इम्पोजिशन सिर्फ इसलिए भी करती है सो दैट गवर्नमेंट इज एबल टू जनरेट मोर रिवेन्यूज. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड. टर्म्स ऑफ ट्रेड को देखें तो इफ अ कंट्री रिजॉर्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ देयर इज जनरली सम इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. ये हमने पीछे के पॉइंट्स में देखा भी. बट इन केस ऑफ इम्पोर्ट कोटाज द टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट
कैनॉट बी डिटरमाइंड, सर्टेनली नहीं कह सकते, मीन्स टैरिफ के केस में कुछ सर्टेनिटी है लेकिन कोटास के केस में कुछ सर्टेनिटी नहीं है. प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंसेस, दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन गवर्नमेंट ट्राइज टू एलोकेट, ऑक्शन करती है, बिडिंग के थ्रू करती है लाइसेंसिंग को, जो भी आपके इंपोर्टर्स हैं, पोटेंशियल इंपोर्टर्स हैं. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, इफ इट इज फेयर, fair means if it is uniformly distributed to the large and small business houses, or without it is distributed on economic grounds and not on the lobbying or pressure groups or political grounds. तो import quotas में सबसे important negative role आ जाता है ब्यूरोक्रेसी का. तो ब्यूरोक्रेसी अब कितनी जो है वो efficiently ये काम करती है, तो that will give the good results. And last is provocation to retaliate. Definitely it is of course true that both tariff and quota restrict export of foreign country, है ना, एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री से कम हो जाएंगे, तो रिटेलिएशन तो दोनों के केस में हो सकता है, लेकिन जो टैरिफ के केस में है वो रिटेलिएशन कम होगा, बिकॉज द एक्सपोर्टिंग कंट्री नोज दैट इफ इट इज एबल टू बियर द अमाउंट ऑफ कॉस्ट, अमाउंट ऑफ टैरिफ, तो स्टिल द एक्सपोर्ट अमाउंट मीन दूसरी कंट्री में जो इम्पोर्ट जा रहा है दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड. ठीक है, लेकिन इम्पोर्ट कोटाज में तो क्योंकि एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्वांटिटी को, ठीक है, तो वो एक थोड़ा रिजिड सिस्टम हो गया, इसलिए दूसरा कंट्री जो है वो जिसके एक्सपोर्ट पर मतलब हमने लगाया है इम्पोर्ट कोटा अपनी कंट्री के एंगल से, तो दैट कंट्री में रिटेलिएट, वो आपके किसी प्रोडक्ट पर लगा सकता है. तो इस तरीके से जो है वो both the countries will be at disadvantageous position. अब इसमें आपका ये पार्ट पूरा हो गया है, और इसमें आप देखेंगे पॉइंट 6 में डायग्राम है जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है. ये we have already discussed this twice under tariff and non-tariff, and rather in 3 times we have discussed in equivalence of tariff and quota. So you can go through this diagram and you can learn that.